It is now being recorded. Over to you, Dr. Shalini. Dr. Shalini, please Sir, carry on. good morning, sir. I'm having some technical issue. Sir, just wait, sir. I'm starting now. Sure, ma'am. Sure, ma'am. No, your voice is clear and loud. Please start the session. No need to start your video, Dr. Shalini. You please go ahead. Your voice is clear and loud. Okay, okay, sir. A very cheerful morning to all of you present over here. The secret of getting ahead is getting started. So, as we know that we are fighting against COVID-19 pandemic, and in this situation, in this tough time, learning must go on. And learning does not exhaust mind. Keeping this in mind, we start Botanical Association, Department of Botany, Bareilly College, Bareilly, in collaboration with Department of Botany, SS College, Shajapur, and Society for Research in Biological Sciences, have organized a invited lecture series 4th on virtual platform. And we are very fortunate enough that we have Galaxy of Botanists with us. And Dr. Ashwini Goyal is one of them. We have Galaxy of Botanists and Professor Ashwini Goyal is one of them. So the speaker of the day is Professor Ashwini Goyal. Professor Ashwini Goyal is former principal, Mangal Pandey Shaheed Girls PG College, Meerut. On behalf of organizing committee, myself, Dr. Shalini Saxena, Department of Botany, Bareilly College, Bareilly, welcome you. It's my privilege to welcome other dignitaries, Dr. Somesh Yadav sir, and other dignitaries, my colleagues, my friends, and all the participants. Great things are done by a series of small things brought together. Now, I'm grateful to all of you. And now, without taking too much time, I would like to invite Dr. Asha Rani, co-organizer of the series, to introduce our eminent speaker, Dr. Ashwini Goyal. Over to you, Dr. Asha Rani. Thank you, Shalini. Good morning to all. Today we have Professor Ashwini Goyal with us. Dr. Goyal started his career in 1978 as assistant professor of botany at Government PG College, Kotdwar. He worked as an associate professor at Government PG College, Lansdowne and Rishikesh. Professor Goyal also worked as principal at Government PG College, Noida, Badalpur, District Bulandshahr and Meerut. He was regional higher education officer in Bareilly and Agra. Dr. Goyal served as Joint Secretary of Higher Education UP. He was examination controller at Subharti University, Meerut. 20 students have completed their research work under his supervision. He has published 50 research papers, 3 books, and has conducted several research projects. Sir has received Pritipal Swaroop Gold Medal and Chaudhary Jaidev Singh Gold Medal in the year 1976. Sir, it would be our honor to listen to you today. You're most welcome, sir. This is over to you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Thank you, Dr. Asha. डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बरेली कॉलेज बरेली और इसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा आयोजित यह लेक्चर सीरीज और इस के आयोजक को मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहले शालिनी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि जिसने मुझे जो है वो एक निमंत्रण दिया इस प्लेटफॉर्म पर, और इस अवसर पर प्रोफेसर एस के भट्टागर,
प्रोफेसर सोमेश यादव, डॉक्टर आलोक खरे, डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर आशा, डॉक्टर आदर्श पांडे साहब, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने मुझे जो है इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया। टॉपिक जैविक खेती है, उससे पहले मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं कि जहां पर डॉक्टर एस.के. भटनागर साहब ने 1964-65 का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री के पद तक थोड़ा सा बाद में आऊंगा। पहले मुझे वो याद आ रहा है कि जब मैंने 65 में 6ठी क्लास में एडमिशन लिया था तो सबसे पहले ये पूछा गया था कि आप वैकल्पिक व्यावसायिक विषय क्या लेंगे। तो उस समय 3 वैकल्पिक विषय हुआ करते थे, काष्ठकला, खेती और बुक क्राफ्ट। तो सामान्यतः जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते थे उनको जो है वो कृषि प्रेफर करते थे देने के लिए। तो हमें भी जो है आगे भविष्य में बायोलॉजी लेनी थी, तो हमने भी जो है वो खेती ली और वहां से जो है वो एक खेती के बारे में विचारधारा और पारंपरिक खेती के बारे में जो इम्प्रेशंस होते हैं वहां से शुरू हुए। बात आती है कि आज वर्तमान में एक बहुत अच्छा आज के पेपर में मुझे हेडिंग मिला इसी संबंध में, खेती वही जो बाजार के मन को भाए। जैसा पहले कभी एक फिल्म में आया था कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तो यहाँ पर खेती वही जो बाजार के मन भाए। आखिर बाजार का मन अचानक चेंज क्यों हुआ, क्यों हेल्थ फूड और कैसे क्या जरूरी सब चीजें आई। तो फिर वही सूत्र वहां से शुरू करता हूं कि 1964 में PL 480 स्कीम में जिस समय देश में जो है वो अमेरिका का डंपिंग गेहूं, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग लाल गेहूं कहते थे, वो जो है वो हिंदुस्तान आता था, जिसकी रोटी सामान्यतः वेस्टर्न यूपी में पसंद नहीं की जाती थी। और तभी तत्काल प्रधानमंत्री द्वारा डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब के माध्यम से यह विचारधारा आगे बढ़ाई गई कि किस तरह से जो है इस PL 480 से जो है वो लाल गेहूं से पीछा छुड़ाया जाए और देश जो है अन्न में आत्मनिर्भर हो सके। तो इस श्रृंखला में कृषि से संबंधित कई सारी क्रांतियां आई। उनमें जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम जरा बाद में लूंगा, गोल्डन रिवॉल्यूशन जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में निरपक्ष तूते जो है वो उन्होंने इसमें जो है वो अपने कदम बढ़ाए। सिल्वर रिवॉल्यूशन में पोल्ट्री से रिलेटेड वो श्रेय मिसेस गांधी को जाता है। रेड रिवॉल्यूशन टमाटर से रिलेटेड था, वो विशाल तिवारी को जो है क्रेडिट जाता है। ब्लू रिवॉल्यूशन जो मत्स्य पालन से रिलेटेड था वो डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को जाता है। येलो रिवॉल्यूशन जिसमें तिलहन के बारे में जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर थे हम, वो सैम पिट्रोडा को जाता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसमें दुग्ध उत्पादन में जो है वो देश में ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना गया, वो डॉक्टर कुरिन वर्गीज के नाम से जो है वो मिल्क मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। और अंतोगत्वा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो बेसिकली जो है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने नॉर्मल बोरलॉग के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत को आत्मनिर्भर अन्न के क्षेत्र में बनाया। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो हुआ तो एक हमारे यहाँ कुछ इस तरह की प्रवृत्ति है कि हम लोग जो है वो सब कुछ भूल जाते हैं और भेड़ा चाल की तरफ चल पड़ते हैं। जहां पर नीड थी कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, तो उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। जो पूर्व पारंपरिक खेती थी उसमें बदलाव आने शुरू हुए, केमिकल फर्टिलाइजर आए, बहुत सारे साइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड जो अंतोगत्वा होमिसाइड के रूप में परिवर्तित हो गए। और ये हाल हो गया कि हमारी नीड जो है वो ग्रीड में कन्वर्ट हो गई और जितना भी प्रोड्यूस था वो धीरे धीरे
आज तक आते आते इतना जहरीला हो गया, उनमें जमा होने लगा कि अनेकों बीमारियां पशुओं में, मनुष्य में और बहुत सारे पक्षी, विशेष रूप से मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा वल्चर्स का, वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए। खास तौर से यदि हम बात करते हैं गिद्ध की बारे में, तो आपने पाया होगा कि किसी जमाने में यदि कहीं पे कोई पशु, कुत्ता या बिल्ली कहीं सड़क पे या कहीं थोड़ा सा भी दूर शहर से जो अगर मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो गिद्ध उस पे झपट के उसको जो है स्कैवेंजर का काम करते थे, सफाई कर्मी का काम कर देते थे। लेकिन आज जो है गिद्ध गायब हो चुका है, और उसका मूल कारण है कि खेती में उस ग्रीन रिवोल्यूशन के माध्यम से आए हुए बहुत ज्यादा केमिकल्स का जो है उपयोग के कारण सारे उत्पाद जहरीले हो गए। तब फिर एक नई विचारधारा सामने आई। मैं चूंकि वनस्पति विज्ञान का छात्र था, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अचानक दिमाग जो है वो जाना मेरा स्वाभाविक नहीं था। लेकिन मेरा एक छात्र जो है वो डॉक्टर धर्मवीर यादव, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो रीजनल सेंटर है इम्फाल, वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर उस समय था। इट वॉज 2018 की बात है, उस समय मैं बाय द वे बरेली में ही कार्यरत था। और वो उसका ये कहना था कि सर, मैंने इसी बीच 1988 में कोर्स भी किया था बायो फर्टिलाइजर्स पे, तो उसको पता नहीं कहां से याद आया कि सर आप जो है वो बरेली में को हम एक क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का प्लांट लगवा दीजिए। बात आई गई हो गई, बहुत सारी चीजें अड़चने थी, बात हुई। तो अभी फिर हाल में जो है वो उन्होंने मेरे से कहा कि आप सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हमें एक आर्टिकल लिख के भेज दीजिए। मैंने कहा भाई मैं तो बॉटनी का बंदा हूँ, एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता। बोले नहीं सर, आप जो है वो अपना कुछ याद कीजिए, जो आपने हमें समझाया था इकोलॉजिकल बैलेंस और ये सब चीजें जो है वो आप एग्रीकल्चर में डाल दीजिए। तो बात वहां से शुरू हुई कि जब हम लोग छोटी क्लासेस में थे और भारत के किसी भी क्षेत्र के बारे में निबंध लिखना शुरू करते थे, तो पहला सेंटेंस होता था, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। तो निसंदेह कृषि पर आधारित है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, इतने सारे रिवॉल्यूशन सामने आए, और इन रिवॉल्यूशन में हम इस कगार पर पहुंच गए कि वो जो उत्पाद हमारे बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए था, वो उसके लिए जहरीला साबित होने लगा। और जो रोटी कपड़ा मकान की हमारी व्यवस्था कृषि आधारित थी, वो धीरे धीरे जो है वो उससे आदमी रिपल्सिव हो गया। दूसरी ओर एक और चीज देखने में आ रही थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में नवयुवक कृषि में भी पारंगत हो रहे थे, वो अपने घर पर कृषि करने से थोड़ा कतराने भी लगे थे। तो कई सारी इस तरह की चीजें जो है सामने आने लगी थी, और हालात ये हो गए थे कि इस एग्रोकेमिकल से कि मिट्टी वो उसकी फर्टिलिटी कम हो गई, जल पीने योग्य नहीं रहा, और वायु में भी जो है वो पेस्टिसाइड्स के कण जो है वो उस क्षेत्र में मिलने लगे। तो इस सारी जो एक पर्यावरणीय प्रदूषण जो हो गया था, इसके बारे में मानव स्वास्थ्य और उसको पौष्टिक खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्यवर्धक भोजन की चाह ने उस पारंपरिक, मूल रूप से पारंपरिक खेती भी ऑर्गेनिक फार्मिंग ही थी, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो परंपराएं बदल गई थी, उस पारंपरिक खेती से जैविक खेती की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। इस बारे में ये कि आज ये लगता है कि हेल्दी फूड, और ये चाहे वो टाटा जो है वो देते हैं बहुत सारी दालें, बहुत सारे मसाले, उन्होंने ऑर्गेनिक के फूड के नाम पे, हेल्दी फूड के नाम पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। तो लगता है जैसे ये कल का ही विषय था। ये ऐसा लगता है कि 21वीं शताब्दी की खोज है, लेकिन
वास्तविकता यह है कि वर्ष 1921 में एल्बर्ट होवार्ड और गैब्रियल होवार्ड दंपतियों द्वारा कृषि में जैविक आंदोलन, ऑर्गेनिक मूवमेंट की स्थापना की गई थी। जबकि हमारा देश उस समय जो है वो आजादी के लिए प्रयासरत था, विदेश में ऑर्गेनिक मूवमेंट शुरू हो चुका था और उनके द्वारा ही इस आंदोलन में भारत में पारंपरिक खेती में सुधार लाने के लिए वनस्पति वैज्ञानिकों की सहायता से पादप उद्योग संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। वर्ष 1939-40 में बैरॉन नॉर्थबॉर्न ने एक बुक लिखी, नाम था लुक टू द लैंड, और उसमें जो है उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द को प्रथम बार सबसे पहले अंकित किया था। यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्दकोश में लगभग 80 वर्ष से अंकित है। निसंदेह आज इसको इस प्रकार भी परिभाषित किया जाता है कि जिस कृषि तकनीक में केवल जैविक खादों जैसे कंपोस्ट, हरी खाद और हड्डियों का चूर्ण आदि ही प्रयोग में लाया जाए तथा कृषि रसायनों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित हो, जैविक खेती कहलाती है। मीन इसकी डेफिनेशन में स्पष्ट है कि कोई भी जो है वो आर्टिफिशियल चीजें उसमें ना ऐड की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें जो है वो उसमें परमिसिबल हैं। हालांकि प्राकृतिक रूप से जैसे कीटनाशक है पायरेथ्रिन, जो कि मूल रूप से गुलदाउदी के फ्लावर्स से मिलता है, कॉपर सल्फेट, सल्फर एक लिमिट तक खेती के कार्य में, मीन फार्मिंग में अनुमन्य है। जबकि डेफिनेशन भले ही ये कहती है कि कोई भी केमिकल उसमें अलाउ ना हो, लेकिन फिर भी कतिपय कारणों से कुछ चीजें जो है उसमें अलाउ हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इसके जो सीमा है, इसके निर्धारण कौन करता है? कौन कहेगा कि अमुक फार्म पर जो खेती हो रही है वो ऑर्गेनिक खेती है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैविक खेती के लिए मानकों का निर्धारण करने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट 1972 जर्मनी द्वारा इसका मानकीकरण किया जाता है और इस संस्था से वर्तमान में अनेकों देशों के साथ लगभग टोटल 710 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर कार्य कर रही हैं, चाहे वो देश हैं चाहे वो संस्थाएं हैं। तो जैविक खेती का मूल उद्देश्य जो है वो हुआ, जो दुष्परिणाम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद नीड और ग्रीड के बीच की रस्साकशी के बाद उत्पन्न हुए, उनमें सॉयल फर्टिलिटी को बढ़ाना, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण प्रदान करना, पौष्टिक उत्पाद प्राप्त करना, और इसमें विशेष रूप से ग्रोथ हार्मोन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स को वर्जित किया गया है। मीन प्रामाणिक रूप से पूरे विश्व में लगभग 7 करोड़, लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती की जाती है और इसमें अकेला ऑस्ट्रेलिया का जो योगदान है वो 50% है। तो विश्व स्तर पर आधी भागीदारी अकेले ऑस्ट्रेलिया की है और बाकी के आधे में पूरा शेष विश्व और बाकी संस्थाएं हैं। अगर भारत का प्रश्न हम सामने रखें तो भारत में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत में बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल, नेशनल और रीजनल लेवल पर कल्चरल कलेक्शन बैंक,
जिसमें जो है डिफरेंट कल्चर्स को जो है प्रिजर्व किया जाए, और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए। इस नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने जो कुछ डाटा उपलब्ध कराया है, उनके अनुसार वर्ष 2003-2004 जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, भारत में मात्र 76,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, जो वर्तमान में लगभग 27.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अपने पैर पसार चुकी है। तो इस सेंटर का उद्देश्य काफी हद तक जो है वो सफल रहा है। अपने इसी में एक संस्था है डाउन टू अर्थ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो है वो बताया कि परंपरागत रूप से विश्व का सबसे बड़ा जैविक खेती करने वाला देश संख्या के अनुसार, जहां पर सबसे ज्यादा किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑप्ट कर रहे हैं, वो भारत है। भारत में इस समय लगभग 59,748 ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग में संलग्न हैं। लेकिन अगर क्षेत्रफल देखा जाए, जहां ऑस्ट्रेलिया जो है 50% जो है वो शेयर ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, भारत का इस समय मात्र 2.59% ही क्षेत्रफल की सापेक्ष इस देश का कंट्रीब्यूशन है। डाउन टू अर्थ ये भी बतलाता है कि जैविक खेती करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति शोचनीय होती है। क्यों? सामान्यतया जो है जो उत्पाद आता है उसका मूल्य भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो है उनकी स्थिति शोचनीय है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ क्षेत्रों में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों ने आत्महत्या तक की है। तो संपूर्ण प्रक्रिया अगर हम देखें कि आखिर ऐसा क्या कारण है भाई कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की इतनी डिमांड है कि हमारा जो मीडिया है वो स्लोगन दे रहा है, खेती वही जो बाजार के मन को भाए, और बाजार के मन को ऑर्गेनिक फार्मिंग भाती है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि किसान की स्थिति शोचनीय है और वो आत्महत्या के लिए जो है वो प्रेरित होता है? तो यदि हानि लाभ की दृष्टि से जो है वो इसका आकलन किया जाए तो जैविक खेती में परंपरागत खेती में वही जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद की आंख मीच के अंधाधुकरण जो है एग्रोकेमिकल्स का किया, और ग्रीड में जो है मोर एंड मोर जो है वो उत्पाद किया जाए, उसके बाद के बारे में बात कर रहा हूं। तो परंपरागत खेती की तुलना में श्रम शक्ति व अन्य लागत अधिक आती है, जिसके कारण जो प्रोड्यूस है उसकी कीमत जो है वो आवश्यकता से अधिक हो जाती है। आपने महसूस किया होगा कि यदि कोई सब्जी जो है वो पारंपरिक खेती से जो है 50 रुपए किलो आई है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो लगभग जो है 2 गुना के आसपास 100 रुपए किलो मिलती है। और हेल्दी फूड के नाम पे लोग उसको जो है जो हेल्थ कॉन्शियस हैं स्वीकार भी कर रहे हैं। तो जो ये अधिक मूल्य है, ये भी एक बड़ा कारण है कि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा और उसकी बिक्री जो है वो सीमित लोगों तक ही सीमित है। साथ ही अन्य कुछ कारण भी है जिनको जो है अगर हम पारंपरिक खेती के में तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाते हैं कि सामान्यतया परंपरागत खेती करने वाले कृषक ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आकर्षित नहीं होते और आय बढ़ाने में विशेष अभिरुचि लेते, और यदि बैंक या अन्य संस्थान से लिया कर्ज उतारने में सफल नहीं हो पाते तो अंततः अवसाद और आत्महत्या की ओर
अग्रसर होते हैं। तो DTE की जो डाउन टू अर्थ संस्था की बात किसी हद तक सत्य महसूस होती है। यदि सरकार, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का प्रण लिया हुआ है, अगर कुछ संशोधन किए गए हैं, नो डाउट किए गए हैं, और यदि कुछ और उनमें नीतिगत उपायों में जैविक खेती के लिए कुछ और प्रावधान जो है वो किए जाएं, तो निश्चित रूप से और अधिक किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की ओर, जैविक खेती की ओर अग्रसर होंगे। जैसा कि किसानों की आय 2022 तक दुगना करने के लिए केंद्र सरकार का संकल्प, इस संकल्प को दोहराने के लिए विश्व में हर 3 वर्ष बाद जैविक कृषि कुंभ का आयोजन होता है, और 19वां जैविक कृषि कुंभ 9 से 11 नवंबर 2017 में, जो कि 19वां जैविक कृषि कुंभ था, इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से जो युवा अपनी डिग्रीज लेकर और एक विशेषज्ञता लेकर निकलते हैं, वो अन्य नौकरियों को देखने के बजाय जो उनके घर में खेती उपलब्ध है उसकी ओर आकर्षित हों, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आकर्षित हों। तो जो कृषि तकनीक से सशक्त युवकों को कृषि उद्योग में लाना केंद्र सरकार का एक सफल प्रयास कहा जा सकता है, जो कि ये जैविक कृषि कुंभ इंडिया 2017 में किया गया। हर वर्ष जो ये कृषि कुंभ जो है वो होता है, 20वां कृषि कुंभ जो है वो विश्व कुंभ का जो आयोजन होना है वो पहले सितंबर 2020 में फ्रांस में होना था, किंतु पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से ग्रसित है, तो उसको देखते हुए फिलहाल इसको 6 से 10 सितंबर 2021 फ्रांस के ही रीन्स शहर में प्रस्तावित किया। लेकिन कोविड-19 की क्या गति होगी, कितना और आगे जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। तो निकट भविष्य में ये कृषि एवं कृषकों के प्रति केंद्र सरकार का जो सकारात्मक और दृढ़ निश्चय है, जैविक कृषि को बढ़ावा देगा। आने वाले समय में शीघ्र ही इस क्षेत्र में अड़चने जैसे जैविक खेती को प्रोत्साहित करने वाली सकारात्मक व सशक्त नीतियां, मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पर जो है वो अगर और इम्प्रूव होंगी, तो और खास तौर से प्रमाणीकरण की व्यवस्था जैसे कि अभी जर्मनी से होती है, अगर भारत में भी इस तरह की स्टैंडर्ड लैब्स प्रमाणीकरण के लिए उपलब्ध होंगी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में सिक्किम राज्य जो है भारत का वो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग से कवर्ड है। उत्तराखंड इस ओर अग्रसर है और वर्तमान में त्रिपुरा, उड़ीसा एवं कर्नाटक राज्य संबंधित योजनाओं का भरपूर लाभ उठाते हुए वो भी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर अग्रसर हैं। और अभी जो है वो एक 14 अगस्त को भी जैविक कृषि में भारतीय किसानों ने दुनिया भर में जमाई धाक, इस हेडिंग से एक न्यूज जो है वो मनोबल बढ़ाने वाली है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसका मुख्य उद्देश्य हेल्दी फूड, जहरीले उत्पादों से जो है हमारी जान बचाने का है, तो पूरे विश्व में भारतीय किसानों की धाक है और उसमें ई कॉमर्स के माध्यम से जैविक उपज की पहुंच खास से लेकर आम जन तक
खेती के क्षेत्रफल में के मामले में भारत अब 9वें स्थान पर पहुंच चुका है और वर्तमान में 5,151 करोड़ मूल्य का निर्यात भी कर चुका है। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्षेत्र धीरे धीरे अपना जो है वो क्षेत्र बढ़ा रहा है और जो क्षति जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्षति पहुंचाने के लिए नहीं था, लेकिन हमारी ग्रीड ने उसको क्षति पहुंचाने वाला बना दिया था, उत्पाद को जहरीला कर दिया था। उन सब से बचाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग निश्चित रूप से आने वाले समय की एक हमारी जो है वो कवच का कार्य करेगी। और चलते चलते एक चीज और बतलाना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर वृहद स्तर पर और कमर्शियल स्तर पर किसान कर रहा है, तो जिन लोगों के पास किचन गार्डन है, निश्चित रूप से वो अपनी किचन से निकलने वाले फल और सब्जियों के जो अवशेष बचते हैं, जो भोजन बचता है, भटनागर सर ने भी बतलाया था कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो कंपोस्ट खाद और दूसरी चीजें बना सकते हैं। अगर उतनी तकनीक की तरफ भी ना जाएं, उसके बावजूद भी अगर जमीन है तो जमीन में गड्ढा खोद के करीब 1-1.5 फीट का गड्ढा खोदिए और उसको जो है वो आधा भर के आधा मिट्टी से भर दीजिए। 3-4 सप्ताह में वो जो है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे 4-6 गमले स्पेयर कर लीजिए। उन गमलों में आधा पहले नीचे थोड़ी मिट्टी, फिर ऊपर आधे से ज्यादा, आधे तक ही जो है वो किचन का जो ये सब्जी और फलों का रेजिड्यू था वो डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी ढक दीजिए। 3-4 सप्ताह में जो है आपके किचन गार्डन के लिए और गमलों के लिए खाद तैयार हो सकती है। तो आप अपने घर पर भी उस ऑर्गेनिक फार्मिंग का आनंद जो है, अगर किचन गार्डन में सब्जी उगा रहे हैं, उसमें भी कर सकते हैं। तो वी होप फॉर द बेस्ट। आशा है फ्यूचर में जो है हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में 9वें स्थान से आगे बढ़कर हो सकता है कि और ऊंचे स्थान पर, पहले या दूसरे स्थान पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच और आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।